at each point of x। तो ये प्रूव कर रहे थे, ये प्रूव कर रहे थे। और हम लोग एक पार्ट प्रूव कर चुके थे दैट if continuous then continuous at each x, ये वाला हो चुका था। So now let f be continuous at each x। हमें क्या दिखाना है? f is continuous। क्या दिखाना पड़ेगा कि inverse image of each open subset of y is open here। Take some open set here। So let v be open in y to show that f inverse v is open in x it suffices to show that f inverse v is a neighborhood of its each point। तो हमको दिखाना है कि f is a neighborhood of each point। एक बार आप इमेजिनरी पिक्चर लीजिए, ये x है, ये y है, इनके बीच में फंक्शन है और हमने एक v ले लिया है यहाँ पर जो कि ओपन है। ये मान लीजिए इसकी इन्वर्स इमेज है, ये इसकी इन्वर्स इमेज है मान लीजिए, ये इन्वर्स इमेज है इसकी। ये नीचे ठीक से लिख देते हैं, ये क्या है? f इनवर्स ऑफ v। इसको मिटा देते हैं। तो ये मान लीजिए इसकी इन्वर्स इमेज है, ठीक है, ये इसकी इन्वर्स इमेज है f इनवर्स v। हम दिखाना चाहते हैं इट्स नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट। कोई पॉइंट लीजिए, कोई पॉइंट लीजिए यहाँ पर। ये पॉइंट चूंकि इसका मान लीजिए पॉइंट x है, सो लेट x be some element of f inverse v। सो नेबरहुड कब होगा? अगर हम किसी तरह से एक ओपन सेट x को कंटेन करने वाला ऐसा ढूंढ लें, मान लीजिए इसका नाम g है, मान लीजिए एक ऐसा निकाल ले ओपन सेट जो कि x को कंटेन करे और फिर इनवर्स v में कंटेन हो, तब f इनवर्स v जो है x का नेबरहुड हो जाएगा। तो हमारी तलाश क्या है? वी वांट टू लुक फॉर सम g। नाउ सो सपोज x belongs to this thing, then this means that f of x belongs to v। f of x belongs to v। f of x belongs to v, right? Now since it is given that f is continuous at each point, so since f is continuous at x, it means कि for every neighborhood of fx, और चूंकि v ओपन है तो every open set is a neighborhood of each point, तो v भी neighborhood हुआ। फिर आई अगेन रिपीट, f is continuous at x का मतलब है कि for every neighborhood of x, every neighborhood of fx, we can find a neighborhood of x जिसकी इमेज fx की neighborhood में contained है। So because f is continuous at x, there exists a neighborhood of x in x। मान लीजिए उसका नाम है सॉरी,
x in x से n सच दैट ये नेबरहुड जो है एफ एक्स की इस नेबरहुड के अंदर कंटेंट है. सिंस n is a neighborhood of x, therefore from the definition of neighborhood there exists an open set containing x which is contained in this n. ठीक है. Now clearly you can see that f of g is contained in f of n. बल्कि ये भी लिख सकते हैं f of g is because g is contained in that, therefore fg is contained in fn. whereby fg is contained in, चूंकि fn is contained in v also. Therefore, as x belongs to g, therefore f of x will belong to f of g. So that means f of हमें क्या दिखाना था, हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था f इनवर्स v इज a neighborhood of each point. तो हमने f इनवर्स v का एक एलिमेंट लिया तो हमको मिल जाएगा. I'll get something like this thing. f inverse v और x के बीच में हमको एक ओपन सेट की तलाश थी. यहां से मिल जाएगा. दिस x is going to belong to g इसमें बिलोंग कर रहा है. ठीक है. और चूंकि यहां लिखा हुआ है ये, सो आई कैन राइट therefore g is contained in f inverse v because fg is contained in v, therefore g is contained in f inverse v. So आपको मिल गया इस तरह का. So that means for every point x of f inverse v we can find, if required, an open set containing x which is contained in this thing. Therefore f inverse v is a neighborhood of its each point. That is f inverse v is open. तो आपने क्या दिखा दिया? आपने क्या दिखाया कि inverse image of each open subset of y is open in x. Therefore, f is continuous, right? So this will complete the proof of this result. कि f is continuous if and only if f is continuous at each point of x. तो यहां पर एक चीज ये देखने की है कि note that the following statements are equivalent. क्या? f from xt to this is continuous. दूसरा, inverse image of each basic open set of y
is open in X, बल्कि ये भी ट्रू है, इनवर्स इमेज of each sub-basic open set in Y is open in X, बल्कि ये भी सही है, inverse image of each closed set, this is closed in Y for every closed subset. This is closed in X for every closed subset F of Y. ये सब इक्विवेलेंट है. देखिए इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था डेफिनेशन के हिसाब से इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि F इनवर्स V is open for every open subset in Y. ये इसका मतलब था. हम कह रहे हैं कि डेफिनेशन तो कहती है कि आप ये टेस्ट कीजिए कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन हियर, लेकिन अगर 2 कहता है इससे भी काम चल जाएगा. आप ये दिखा दीजिए कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बेसिक ओपन सेट इज ओपन. सारे ओपन सेट के टेस्ट मत कीजिए, केवल बेसिक ओपन सेट के टेस्ट कीजिए. और ये और एक कदम और बढ़ जाता है कि अगर आप केवल इनवर्स इमेज ऑफ ईच सब बेसिक ओपन सेट को ओपन दिखा दे, उससे भी काम चल जाएगा. तो आपका काम बढ़ गया, आपका काम घट गया. देखिए नंबर ऑफ ओपन सेट्स की संख्या अमूमन टोटल नंबर ऑफ ओपन सेट से कम होती है और सब बेसिक ओपन सेट की संख्या और भी कम होती है. तो ये रिजल्ट बड़ा यूजफुल हुआ. आपको अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है और इत्तेफाक से आपको ये सब बेस मालूम है, तो आप केवल इतना टेस्ट कर लीजिए क्या हर सब बेसिक ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन है कि नहीं, उससे भी काम चल जाएगा. राइट. और ये कहता है कि जैसे आप इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ओपन टेस्ट करते हैं, अगर आप इनवर्स इमेज एवरी क्लोज सेट क्लोज दिखा दें तब भी काम चल जाएगा. राइट. सो लेट अस सी why all these things open. तो जैसे पहले हम दिखाते हैं आपको 1 और 2 का इक्विवेलेंस. ठीक है. अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट शुड बी ओपन. 2 में तो और कम रिक्वायरमेंट है कि सारे ओपन सेट नहीं, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बेसिक ओपन सेट इज ओपन. तो अगर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, तो surely inverse image every basic open set is also open. So 1 implies 2 is obvious, right? So obviously 1 implies 2. अब मान लीजिए हमको दिखाना है 2 implies 1, तो 2 को मान लीजिए. इतना ही मालूम है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी सब बेसिक ओपन सेट, लेकिन हम दिखाना क्या चाहते हैं, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन. तो कोई ओपन सेट लीजिए, लेट वी बी एनी ओपन सेट एंड लेट बी बी सम बेस फॉर दिस टॉपोलॉजिकल स्पेस. देन आपको मालूम है कि हर ओपन सेट जो है वो बेसिक ओपन सेट्स की यूनियन की शक्ल का होना चाहिए. इसका मतलब कि आई कैन राइट V एज यूनियन ऑफ सम BIs such that each BI is a basic open set. Now हमें क्या दिखाना है कि
एफ इनवर्स वी जो है ओपन है, तो एफ इनवर्स वी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ unit of all these bi's, but this is equal to, by using set theory, this is equal to union of f inverse bi, I belonging to I। और हमारा एसम्पशन क्या है कि टू, हम मान के चले 2:2, तो 2 क्या कहता है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बेसिक ओपन सेट इज ओपन। तो चूंकि ये बेसिक ओपन सेट है तो ये तो ओपन है, राइट। सो विच इज ओपन बीइंग union of open sets। चूंकि by assumption each of this thing is open, तो ये यूनियन है और आपको मालूम है union of open sets remains open, तो this thing is going to be open, therefore f inverse v is open, right। तो अगर आप कोई भी ओपन सेट लीजिएगा तो उसकी इनवर्स इमेज भी ओपन होगी, अगर आप केवल इतना मान लें कि inverse image of every sub basic open set is open। So that will imply that, so therefore okay, so therefore okay, so therefore, so याद लिख देते हैं, so therefore 2 implies 1, right। तो 1 implies 1 and 2 are equivalent, ये तो यहां से क्लियर हो गया। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम 1 implies 3 नहीं प्रूव करेंगे, आपके लिए एक्सरसाइज दे देंगे, हिंट दे देते हैं कैसे होगा। अगर 1 मान लेते हैं तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन, सो ऑब्वियसली इनवर्स इमेज ऑफ ईच सब बेसिक ओपन सेट, क्योंकि सब बेसिक ओपन सेट भी तो ओपन होता है, तो 1 implies 3 तो ऑब्वियस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ऑब्वियस था 1 implies 3 इज ऑब्वियस। हमको दिखाना है कि 3 implies 1, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 1 और 2 इक्विवेलेंट हो गया है, तो 3 को मान लेते हैं और इतना दिखा देते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच बेसिक ओपन सेट इज ओपन। और आपको याद है कि अगर सब बेस दिया हो तो करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, करस्पॉन्डिंग बेस इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। So 1 implies 3, ये आपके लिए एक्सरसाइज हो गई, which is similar to ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ये दिखाते हैं आपको अब यहां पर 1 और 4, यानी कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इज इक्वल टू इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कैसे, तो पहले हम ये मान लेते हैं, पहला वाला मान लेते हैं इनवर्स इमेज एवरी ओपन सेट इज ओपन, मान लेते हैं कोई क्लोज सेट दिया हुआ है y का, let this be closed, then its complement is open by 1। 1 क्या कहता है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, सो दैट मीन्स कि f inverse of y minus f is open in X, which means this belongs to this thing, right?
बट, और ये सेट थ्योरी, इस पर कोई टोपोलॉजी नहीं है, बट वेरीफाई दैट f inverse y minus f is nothing but x minus f inverse f. सेट थ्योरी है. कैसे होगा? इसलिए होगा कि अगर मान लीजिए x इसमें बिलोंग किया, मान लीजिए राइट हैंड साइड पे बिलोंग किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि x does not belong to this thing. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि fx does not belong to f. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि fx belongs to the complement of f. और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि x belongs to the inverse image of y minus f. तो अगर आपने इसका कोई एलिमेंट लिया x, तो आप दिखा देंगे x इसको बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स दिस थिंग इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट? ऐसे उल्टा ले लीजिए, अगर आपने कोई x यहां पर लिया तो देखेंगे दिस विल इंप्लाई दिस थिंग, दिस विल इंप्लाई दिस थिंग, दिस विल इंप्लाई दिस थिंग, and this will imply this thing. So you can see that x belongs to this thing if and only if x belongs to this thing. That means दोनों सेट्स बराबर हो गए, दोनों सेट्स बराबर हो गए. So ये बिलोंग कर रहा है, ये ओपन है, ये ओपन है, यानी ये भी ओपन हो गया. तो अगर ये ओपन हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, राइट? देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका मतलब ये का कॉम्प्लीमेंट हुआ, दिस इज closed in x. So one implies 4, right? और अगर आपने इसको ठीक समझ लिया है तब कोई दिक्कत नहीं होगी, हम फिर आपके लिए छोड़ देंगे 4 implies 1 एक्सरसाइज. कुछ नहीं है, सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी है. और ये याद रखना है कि ओपन सेट क्लोज सेट कॉम्प्लीमेंट है, क्लोज सेट जो है ओपन सेट कॉम्प्लीमेंट है, और कुछ नहीं करना है, राइट? तो आपको अब कंटिन्यूटी चेक करने के डेफिनेशन के अलावा 3 तरीके और मालूम चल गए. डेफिनेशन के मुताबिक क्या चाहते हैं? एवरी ओपन सेट की इनवर्स ओपन होनी चाहिए. लेकिन 2 क्या कहता है कि इससे भी काम चल जाएगा, टेस्ट कर लेंगे इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बेसिक ओपन सेट इज ओपन. 3 कहता है इससे भी काम चल जाएगा, अगर आप केवल ये टेस्ट कर लेंगे इनवर्स इमेज ऑफ एवरी सब बेसिक ओपन सेट इज ओपन. और चौथा क्या कहता है कि इससे भी काम चल जाएगा अगर आप दिखा दें कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड, राइट? तो आपको कई तरीके मालूम चल गए. तो जरूरत के मुताबिक जो सरल लगेगा उसका इस्तेमाल करके हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes. हो गया? ओके. सो नाउ एक फाइनली एक और रिजल्ट प्रूव कर दे जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अलग से कर देते हैं हम. वो ये है कि ए फंक्शन बिटवीन 2 topological spaces is continuous if and only if क्या होता है, हम भूल रहे हैं, f of a closure is contained in closure of, I'm sorry, इसको ऐसे लिखेंगे हम, this is contained in
फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स। ये भी एक तरीका हो गया कंटिन्यूटी टेस्ट करने का, राइट। यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि हमने लिखा जरूरी है, इसका मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ ए हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी। और ये देखिए, ये ऐसा स्थिति कैसी है, समथिंग लाइक दिस, ये आपका x है, ये आपका y है, यहां से यहां तक f है, ये आपका मान लीजिए a है, ये मान लीजिए आपका FA है। तो A तो X का सबसेट है, तो दिस इज क्लोजर विद दिस। ये जो है A जो है इसका सबसेट है, सो दिस इज क्लोजर इन X, दैट मीन क्लोजर विद रिस्पेक्ट दिस टोपोलॉजी। और FA जो है Y का सबसेट है, दैट मीन दिस इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी। दोनों फर्क है। तो इसीलिए कई लोग क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, F closure of A in X is contained in closure of FA, but this is in Y, right? यहां पर हमने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है, सेम बार इस्तेमाल कर, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला क्लोजर है X में, ये वाला क्लोजर है Y में। तो अगर थोड़ी सी डाउट की गुंजाइश हो तब आप सावधानी बरतें और ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ क्लियर हो जाए, दिस इज क्लोजर बीइंग टेकन इन X, दिस इज क्लोजर बीइंग टेकन इन Y। बट यूजुअली आदत पड़ जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम जगह लेता है, इसको लिखना सरल है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज ए मोर एक्यूरेट वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, राइट। सो लेट अस सी व्हाई दिस हैपेंस। प्रूफ, तो प्रूफ देखिए, फर्स्ट लेट F बी कंटिन्यूअस। अब हम आपको याद दिलाएंगे, इसका मतलब ये भी हो गया कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड। अभी अभी देखा है कि कंटिन्यूटी का काम क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड है, ये टेस्ट करने से भी चल जाएगा, तो उसको याद रखेंगे। नाउ हाउ डू आई शो दिस थिंग, how do I show this thing? Let A be contained in X. कैसे दिखाया जाए इसको? Okay. Okay. So since this thing is closed कहां पर, in Y, and F is continuous, therefore by what we had seen a short while ago, inverse image of every closed set is closed। तो चूंकि ये closed set है, इसलिए F inverse of this closed set is closed in कहां पर, X में, ठीक है। क्योंकि F A क्लोजर थोड़ा इससे बड़ा होगा और इसकी इनवर्स में लीजिएगा तो आप X में पहुंच जाएंगे। तो ये जो है आपका X का सबसे बड़ा, therefore this is closed in X, this is closed in X। Now नोट दैट, और इसमें कोई टोपोलॉजी नहीं है, इसमें सेट थ्योरी है। नोट दैट कि ऑलवेज 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 कोई भी सबसेट, कोई फंक्शन हो फ्रॉम X टू Y, टोपोलॉजी भूल जाइए, कोई फंक्शन हो फ्रॉम X टू Y और एक कोई भी सबसेट हो F, कोई भी फंक्शन हो, तो हमेशा हमेशा इसमें से क्या रिलेशन होता है, एक तरफ ले लीजिए आप A और एक तरफ आप ले लीजिए F A और इसकी इनवर्स इमेज। तो आपने क्या किया, कोई A लिया, फिर यहां चले गए, फिर इसकी इनवर्स इमेज लेंगे। जब इसकी इनवर्स इमेज लेंगे FA की, तो हूबहू A नहीं आएगी, क्योंकि आपका F 1 और 2 नहीं है।
तो इसकी जो इन्वर्स में जाएगी हो सकता है वो ए से बड़ी हो। सो नॉर्मली क्या होता है, दिस इज ऑलवेज कंटेन इन ए। नहीं होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सब आपने पढ़ा होगा 10th 12th जब भी पढ़ा हो, फर्स्ट टाइम सेट थ्योरी, राइट, कि ये हमेशा होता है ए इज ऑलवेज कंटेन इन एफ इनवर्स ऑफ एफ ए। बराबर नहीं होता है, बराबर तभी होगा जबकि एफ जो है 1 और नॉन 2 हो या कोई कंडीशन हो, राइट। तो ऑर्डिनरली दिस ऑलवेज कंटेन इन दिस थिंग, is always contained in this thing, right? So therefore, now note that since this happens always, therefore A is contained in, अब ये जो FA जो है, ये FA क्लोजर से छोटा होता है, तो यानी कि ये इसमें भी कंटेंट होगा। F इनवर्स आप FA को रिप्लेस कर दीजिए बाय ए बिगर सेट, ये बड़ा सेट है, तो जब इसमें कंटेंट है तो इसमें भी कंटेंट होगा क्योंकि तो बड़ा है। वेयर बाय द क्लोजर ऑफ दिस थिंग विल बी कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ दिस थिंग। If A is contained in B, then A closure is contained in B closure, याद है कि नहीं? तो ये इसमें कंटेंट हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये सेट क्लोज्ड है और आपको मालूम है सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल टू क्लोजर, तो इसका क्लोजर इसी के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू F इनवर्स FA। क्यों? क्योंकि हमने आपको याद दिलाया कि a set is closed if and only if it is equal to its closure। तो चूंकि already a closed है, therefore this is going to be its closure, तो कोई अंतर नहीं आएगा। So you'll get that a bar is contained in this thing, hence f को यहां ले आइए, f of a bar will be contained in f of a bar, right? So if f is continuous, then for every subset A, f of a bar is always contained in f of a bar, जो कि हमने यहाँ पे आपको अभी भी दिखा दिया। ये हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये इसकी जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा लग गया, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा था, यहाँ भी एक्स्ट्रा लग गया ब्रैकेट, मिटा दीजिएगा। जितने लेफ्ट पैरेंथेसिस है उतने ही राइट होना चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए ना। ओके, सो यू विल गेट, सो इफ दिस हैपेंस, इफ f is continuous, then this happens, right? So conversely, assume ये जो प्रॉपर्टी है, अब पूरा लिखने से हम बचने के लिए हम अपनी आसानी के लिए इसका नाम दे देते हैं। Suppose I call this thing as a star. Conversely, assume star. Assume star. ठीक है, हम दिखाएंगे कि f is continuous। तो क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे continuous? By showing that inverse image of every closed set is closed। क्योंकि यहाँ पे क्लोजर है ना, तो क्लोज सेट दिखाना ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ओपन सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं और हम दिखाएंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज। रिमेंबर कैसे दिखाएंगे, continuity by showing that inverse image every closed set is closed। तो कोई क्लोज सेट लीजिए, so let f be closed, let f be closed, suppose f is closed, okay, so let me write here, we wish to show that f inverse f is closed in कहां पर, x पे, for which it will be enough to show that, याद कीजिए
ये सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल टू क्लोजर। तो क्या दिखाना, इससे काम चल जाएगा, दिखा दिया दिस इज इक्वल टू क्लोजर, दिखा देंगे दिस इज इक्वल टू क्लोजर, उससे मालूम चल जाएगा एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड। लेकिन एफ इनवर्स एफ अपने क्लोजर में से छोटा होगा तो इतना दिखाने से काम चल जाएगा कि एफ इनवर्स एफ का क्लोजर इज कंटेन इन, इसको ध्यान से देखिए, हम दिखाना चाहते हैं ये क्लोज्ड है, तो क्या दिखाना चाहते हैं, दिस इज इक्वल टू क्लोजर, बराबर दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमको मालूम है क्लोजर हमेशा बड़ा होता है, एक साइड तो ऑब्वियस है, तो नॉन ऑब्वियस पार्ट क्या है कि क्लोजर इसके अंदर कंटेंट है, तो इतना दिखाने से काम चल जाएगा। तो हमारा फोकस है दिखाना कि दैट दिस थिंग हैपेंस, और दिया क्या हुआ है, स्टार दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। So now we start like this. We start like this. How do we do? How do we do this thing? हमको यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। Okay, okay. Now, since अगर आपने एफ इनवर्स एफ लिया और फिर इसकी इमेज ली, फिर इसकी इमेज ली, फिर इसकी इमेज ली, राइट, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो क्या क्या स्थिति है, समथिंग लाइक दिस। ये आपका x है, ये आपका y है, इन दोनों के बीच में कोई फंक्शन है f, और f कहाँ था, y का सबसेट था, ये मान लीजिए इसका सबसेट है। फिर आपने इसकी इनवर्स इमेज ली, मान लीजिए इसकी इनवर्स इमेज है, ये इसकी इनवर्स इमेज है, और फिर इस पे लगा दीजिए आप f, फिर से लगा दीजिए इसकी, फिर इसकी इमेज लीजिए, वो हमने यहां लिखा है, राइट। तो सेट थ्योरी में आप पाइएगा दिस इज ऑलवेज कंटेन्ड इन f, ये सेट थ्योरी है, इसमें कोई टोपोलॉजी नहीं है, और बिल्कुल सरल है, डेफिनेशन फंक्शन की और इमेज इनवर्स इमेज की डेफिनेशन से फॉलो कर जाएगा। बराबर कब होता है, जब f या तो 1 1 या 1 2, कुछ हमको याद नहीं है, एक्स्ट्रा कंडीशन तभी होगा, अदरवाइज हमेशा दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो यू विल गेट दिस थिंग, यू विल गेट दिस थिंग। नाउ नाउ हमारा उद्देश्य क्या है, यहां तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना। तो हाउ डू आई मैनेज इट, how do I manage it? Okay, f is this thing, okay, 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 okay. बाई स्टार, स्टार को मान के चल रहे हैं, और स्टार कहता है कि हर सबसेट के लिए एक्स के, तो हम एक ही जगह ले लेते हैं ये वाला सबसेट, आई विल टेक माई ए टू बी इक्वल टू ये वाला सबसेट। देखें यहां पे शक्ल क्या हो जाएगी इसकी, तो इसके हिसाब से क्या मिलना चाहिए हमको, एफ ऑफ ए बार, लेकिन ए को मान के चल रहे हैं ये, तो इसका बार शुड बी कंटेन्ड इन एफ इस पूरे के बार में, एफ ऑफ ए बार इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट। और हमें क्या इस्तेमाल करना है, दैट एफ इज क्लोज्ड, हाउ डू आई यूज इट, okay, 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 okay. Now you see, therefore, as f is closed, we'll get f of f inverse of this thing
विच इज कंटेन इन दिस थिंग। अब यहां से देखिए ये इसमें कंटेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर A इज कंटेन इन B देन A बार इज कंटेन इन B बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f ऑफ f इनवर्स दिस इसका बार इज कंटेन्ड इन इसका बार, लेकिन चूंकि f क्लोज्ड है तो इसका बार इज इक्वल टू f इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह पर आई कैन राइट दिस इज इवन कंटेन इन f, आई कैन राइट हियर समथिंग लाइक दिस, ये मिल जाएगा हमको, राइट, वेयर बाय I will get f inverse of f, इस f को यहां ले जाइए, this is contained in f inverse f। काम चल गया, यही दिखाना चाहते थे हम, यही दिखाना चाहते थे, तो हमने दिखा दिया that this thing is contained in this thing and therefore f inverse f is closed in X. So f is continuous। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया प्रूफ, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, राइट। तो अब आपको कंटिन्यूटी को टेस्ट करने का एक और तरीका मालूम चल गया, 3 पहले मालूम चल गए थे, अब चौथा मालूम चल गया। So take a screenshot of this thing. सर f of f इनवर्स f का क्लोजर सबसेट f वो कैसे समझाए और एक बार बोल दीजिए ना। कहाँ बोल रहे, कहाँ की बात कर रही हैं? as f is closed then जो लाइन है वो हम भी देख ले कहाँ लिखा है हमने, नीचे सर एकदम ये अच्छा हाँ, ये हम कह रहे हैं ना, ये तो मान लिया आपने, ये होता है हमेशा, दिस ऑलवेज हैपन, इसमें कहीं टोपोलॉजी नहीं है, कोई भी ऐसा x और y दो सेट्स में कोई भी फंक्शन होगा, इसका कोई भी सबसेट होगा, इसकी इनवर्स इमेज लीजिए फिर इसकी इमेज लीजिए तो हमेशा भी इसके अंदर कंटेंट होगी, बराबर भी हो सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी, ऑलवेज कंटेंट इन f, ये तो हमेशा ट्रू होता है। तो अगर a इज कंटेंट इन b तो हम कॉलम क्लोजर ऑफ a इज कंटेंट इन क्लोजर ऑफ b, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ दिस थिंग इज कंटेंट इन क्लोजर ऑफ दिस थिंग, लेकिन चूंकि f हमने क्लोज लिया हुआ है तो f इज इक्वल टू इट्स क्लोजर, तो ये क्लोजर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि दिस क्लोजर इज कंटेन्ड इन f। अब ये हम पहले ही देख चुके थे यहाँ पर, और अभी हमने देखा कि दिस पार्ट इज कंटेन्ड इन f, तो हमने इसकी जगह पे f लिख दिया यहाँ पर। जब यहाँ तक पहुंच गए तो हमने फिर दो तरफ ले लिया f इनवर्स, तो f इनवर्स इसको यहाँ जब इसमें कंटेन होगा तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी कंटेन इन f इनवर्स f, इधर वैसे लिखा हुआ है। बोले समझ में आया कि नहीं अभी भी? ये हमेशा ट्रू होगा, इसमें कोई टोपोलॉजी इस्तेमाल नहीं, केवल सेट थ्योरी का इस्तेमाल है, ये हमेशा ट्रू होता है। ट्रेस कर लीजिए, एक एलिमेंट दिखा दीजिए और यहाँ से लीजिए दिखा दीजिए वो यहाँ बिलोंग करता है, दिस ऑलवेज हैपेंस, देयरफॉर क्लोजर ऑफ दिस थिंग इज कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ दिस थिंग, लेकिन इसका क्लोजर बराबर f के होगा, सो दिस क्लोजर ऑफ दिस थिंग इज कंटेन्ड इन f। ये एक चीज हो गई, ये पहले ही देख चुके थे। तो अब हम चूंकि ये वाला चीज f से छोटा है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट लाइक दिस थिंग एंड देयरफॉर फ्रॉम हियर, अगर आपको मालूम है कि f ऑफ a अगर b में कंटेन है then this implies a is contained in f inverse b, वो हमने यहाँ लिखा है। if f of something is contained in this thing then this thing is contained in f inverse of this thing, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है और वही चीज हमको याद करना था। So that is why f inverse f turns out to be a closed subset for every closed subset f and therefore f is continuous। ठीक है, आराम से देखिएगा, जब लौट के जाइएगा, राइट। ओके सर। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने? यस सर। ओके, देन ओके, व्हाट एल्स शुड आई डू नाउ? अच्छा, छोटी छोटी चीजें कर लें क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। तो अगर आपके पास दो टॉपोलॉजिकल स्पेसेस हैं y s और इनके बीच में एक फंक्शन है
और मान लीजिए कि लेट दिस बी कंटिन्यूस and A be a subset of this thing. A be a subset of this thing. Consider the subspace topology. क्या नाम था उसका? हम लोगों ने कैसे डिनोट किया था? ऐसे डिनोट किया था ऑन ए। और याद कीजिए क्या था, होता क्या था, क्योंकि समय हो गया है, होता क्या था कि जितने भी इसके ओपन सेट्स थे उनका ले लेते हैं सेक्शन ऑफ दिस थिंग, ये टोपोलॉजी होता था, इसको बोलते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी। देन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस फंक्शन टू ए is continuous. FA is referred to as the restriction of F to A. And defined as f of A of any element is nothing but f of A. ये है कुछ नहीं भाई, ये आपका x है, ये आपका y है, कोई फंक्शन यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक a इसका सबसेट है। तो हमने क्या किया कि हमने f के डोमेन को छोटा कर दिया, केवल a पे ले लिया, डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं किया। तो बजाय f यहां से यहां तक के अब हम डिफाइन कर रहे हैं ओनली फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, केवल इसी के एलिमेंट को भेज रहे हैं। वही तरीका है, कोई चेंज नहीं, वही f है। नाम दे दिया इसका, इस फंक्शन का नाम दे दिया f, इसको पढ़ लिया कैसे, f रिस्ट्रिक्टेड टू a। सो दिस इज कंटिन्यूअस, राइट। सो दिस इज कंटिन्यूअस। ऑब्वियसली क्यों कंटिन्यूअस होगा कि सिंस f of a inverse v is equal to all elements of A such that FA, which is all elements of A such that FA belongs to V, which you can write as, which, I'm sorry. इसको ऐसे लिखेंगे, this belongs to, you can write as क्या हो रहा है हमको, which I can write as A intersection F inverse V। ठीक है, तो चूंकि F पहले से ही कंटिन्यूअस था, तो अगर V ओपन सेट है तो F इनवर्स V यहाँ पर ओपन है, ये ओपन है, तो ये ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट ऑफ X इंटरसेक्शन A। सो दिस हैज टू बी ओपन इन द सबस्पेस टोपोलॉजी, सो दिस इज ओपन। तो अगर V ओपन है तो ये भी आपका ओपन हो जाएगा। सो दिस ऑलवेज हैपेंस कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो कोई भी S का सबसेट ले लें, तो सबस्पेस टोपोलॉजी, तो अगर F को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस आएगा। इसका कभी कभी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही कि अगर आपके पास बजाय 2 के एक और ले लीजिए TS, इसके लिए कोई नाम ही नहीं बचा, मान लीजिए ये एक टोपोलॉजी है, राइट। सो रिजल्ट क्या है कि इफ FG आर कंटिन्यूअस देन this is
also continuous. Extremely easy, right? क्योंकि ये x है, ये y है, ये z है, यहाँ से यहाँ तक f है, यहाँ से यहाँ तक g है, तो हमको दिखाना है कंपोजिशन कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लेंगे, उसकी इनवर्स पे निकालनी थी। उसकी इनवर्स पे क्या होगी? उसकी इनवर्स में जो होगी आपको मालूम है कि GOF इनवर्स ऑफ एनी दिस थिंग इज इक्वल टू क्या होता है? F इनवर्स G इनवर्स W होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर ये W है आपका मान लीजिए, तो पहले इसकी इनवर्स में यहाँ निकालेंगे। तो चूंकि W ओपन है, G कंटिन्यूस, ये ओपन हो जाएगा। तो ये जब ओपन हो जाएगा तो इसकी इनवर्स में भी ओपन होगी, क्योंकि F भी कंटिन्यूस है। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी, सो दिस ऑलवेज ट्रू। दैट मींस द कंपोजिशन ऑफ continuous maps remains a continuous map. ठीक है? तो restriction of a continuous map is always continuous and the composition of two continuous maps is also always continuous. यहाँ हमने 3 लिखे, आप 4 लिख लीजिए। 1, 2, 3 फंक्शन का कंपोजिशन, 4 का फंक्शन, कितने भी ले लीजिएगा, अगर सब के सब इंडिविजुअली कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन, अगर कंपोजिबल है तो उनका कंपोजिशन भी हमेशा कंटिन्यूस आएगा। सो इसका हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे, राइट? सो दिस ऑल फॉर टुडे। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लीव। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।